Hi everyone. So extremely sorry for the delay, for all the confusion. Now, if my voice is very clearly audible and my screen is visible, please give me a thumbs up and let your other friends know that this is the site where we are starting with the prediction series. We'll wait for another 2-3 minutes so that everyone can join and then we'll start. I'll be really helpful. That'll be really helpful if you can just please let me know if my voice is clear. Give me just a thumbs up so that I'll know the voice is clear and the screen is visible. Chalo, good. Now what we'll be doing here is, so the start was little bumpy, but let's make it a good session. What we'll be doing it, we'll discuss the predictive questions that can come from obs and gynae. We'll not do just the questions, we'll do all the related things, all the related stuff that will be, that is something very high probable, that has very high probability chance of being asked. Okay? So let's start with the first question. I really want you to go through the question fast and give me the answer fast. Okay? In the pelvic inlet, just remember, in the inlet, which is the shortest AP diameter? Please tell me which is the shortest AP diameter? True conjugate, anatomical conjugate, bispinous diameter, or the obstetrical conjugate? Which is the shortest AP diameter? Just write down ABC. Give me the answer so that we can start with the discussion. Okay, so I've got an answer, obstetrical conjugate. Then D, right? Everyone else? Okay, right. Okay, what do you think the diameter of bispinous diameter? Why not bispinous diameter? Why don't you think so? Bispinous diameter, in fact, is called as the plane of least pelvic dimension. So why it is not the smallest? Why are you not marking bispinous diameter? Because they are specially asking the diameter in the inlet. Bispinous is a diameter in the cavity. And it is not an AP diameter, it's a transverse diameter. That is why. Otherwise, bispinous is also very short. Now, when we talk about inlet, I have told you in pelvis. Pelvis में inlet is like a door. इनलेट एक डोर की तरह है जिसका एक एपी डायमीटर है, एक ट्रांसवर्स डायमीटर है. ट्रांसवर्स डायमीटर इज स्पेशियस इनफ. दैट इज वाई हम उसकी बात ही नहीं करते बिकॉज इट इज स्पेशियस. वी टॉक अबाउट द एपी डायमीटर क्योंकि वो छोटा होता है एंड बेबी हैज टू ट्रैवर्स थ्रू दैट स्मॉलर डायमीटर. तो जब अभी हम एपी डायमीटर की बात करते हैं इन इनलेट, वी टॉक अबाउट 3 diameters. The one is the anatomical conjugate, and it is again synonym to the obstetrical conjugate. So anatomical and obstetrical conjugate are the same. They start from the superior border of symphysis pubis and to the sacral promontory. This is anatomical conjugate. Just a point little below. Just a point little below is anatomical and true conjugate. They are the same. Just a point little below is obstetrical conjugate. Should I zoom in the picture? There's nothing in the picture as such. There is what I'm writing that you have to focus on. The obstetrical conjugate, where is it lying? It is just a point below. It is from the posterior border of pubic symphysis. It is from the posterior border of pubic symphysis to sacral promontory. A little shorter depth than anatomical conjugate. I cannot measure both of them. So the second question, the diameter I can measure. The diameter I can measure is the diagonal conjugate. It is from the lower border of pubic symphysis. ये lower border से है, that is why I can measure it. Question number 3, how to calculate obstetrical conjugate from diagonal conjugate? Diagonal conjugate is around 12 to 12.5 centimeter. When I subtract 1.5 to 2 centimeter, then comes my obstetrical conjugate. So diagonal conjugate minus 1.5 to 2 centimeter is the obstetrical conjugate. The diameter which I can measure is the diagonal conjugate. The smallest one is the obstetrical conjugate. Okay? These are the related questions.
Now, let's talk a little bit about other diameters also. If I come into the cavity, the smallest diameter is a transverse one, which is bispinous. Bispinous is the smallest diameter of 10 to 10.5 centimeter only, and it is called as the plane of least pelvic dimension. Plane of least pelvic dimension. If I have a plane of least pelvic dimension, do we have a plane of greatest pelvic dimension also? Is there a plane of greatest pelvic dimension also? Yes. Where is it? What is the plane of greatest pelvic dimension? The plane of greatest pelvic dimension lies inside the cavity, and it starts from the posterior border of symphysis pubis. Posterior border से, because it is cavity, तो symphysis pubis के पीछे से ही शुरू होगा. It is in the cavity. Posterior border of symphysis pubis till S2 S3. Till S2 S3 is the plane of greatest pelvic dimension, जो एक circular diameter है. हर जगह से it is 12 centimeter. It is the plane of greatest pelvic dimension from posterior border of symphysis pubis to S2 S3. Plane of least pelvic dimension is the bispinous one, and inlet has three kind of conjugates. So pelvis में सबसे important यही diameters है. Clear? Should we move ahead? Okay. Now next question. Please answer. Simple question है. Just use little bit of acumen and then you'll know the answer. On 5 day of fertilization, day 5 after fertilization, blastocyst enlarge within the zona pellucida. Which of the following events occur? Which of the following event occur that will allow the implantation? What is implantation? I told you, just planting yourself very strongly. Planting yourself very strongly somewhere, that is implantation. तो ऐसा क्या होता है डे 5 पे जो अभी तक नहीं हो रहा था? What happened on day 5 that was not happening initially that led to implantation? Differentiation होता है या disintegration होता है या primary villi बनते हैं? What happens? Please tell me. Yes. So all this doesn't happen? Yes, all of this happen in the process of embryogenesis. These are all the steps. But अगर हम implantation की बात करें, why it was not happening? Because of a thick zona pellucida. Because of this layer, the implantation was not happening, and when around day 5 and 6, zona pellucida dissolve, implantation happen. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के थ्रू थोड़े थोड़े एम्ब्रियोजेनेसिस की पार्ट्स देखते हैं. लेट्स सी हाउ द एम्ब्रियोजेनेसिस हैपन. What happened in embryogenesis? The light will come. My light has gone. It will come again. Don't worry. So once the fertilization happen, division starts and morula forms. Multiple division forms, morula forms. Till 3 days. Till 3 days, the embryo travels in the tube. Embryo is traveling in the tube till 3 days. On the 4th day of fertilization, it comes in the uterine cavity. On the 4th day, it comes in the uterine cavity. On the 5th day, what happens? That it divides itself. The blastomeres, the cell divide itself into surrounding trophoblast and the inner cell mass. ठीक है? They divide into the trophoblast and inner cell mass at day 5. At day 6, what happens? The zona pellucida ruptures, or you can say the zona pellucida disappears. ठीक है? What I'm writing, focus on that. No, why are you low? If I'll zoom, what will happen? So this is happening on day 5. Trophoectoderm form, inner cell mass form. This is happening on day 5. अब day 6 पे क्या होता है? Day 6 पे the embryo comes out of zona pellucida. और day 6 से लेके day 10, this is the duration of implantation. Implantation होने में it takes 4 days, and day 6 to day 10 is the duration of implantation. ठीक है? ठीक है, implantation हो रहा है. What is happening inside the embryo? Let's see what is happening inside the embryo. Now at around day 7, your inner cell mass divides into 2 layers. At day 7, inner cell mass divided into 2 layers. ऊपर वाली is called epiblast, and the नीचे वाली, the lower one, is called hypoblast. Who will tell me which layer forms the actual fetus? Which of these layers will form the fetus? Correct. Implantation begin on day 6, complete on day 10. Absolutely.
एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में से विच ऑफ दीज फॉर्म द फीटस? हु विल टेल मी? The hypoblast is the one that forms fetus, and epiblast forms the surrounding layers. The surrounding layers of the fetus is formed by the epiblast. Now this happens in day 7 when your inner cell mass, देखो इसमें point भी है, when your inner cell mass divide into epiblast and hypoblast. That happens at around day 7. But it has no role in implantation. जब तक implantation हो रहा है, it is happening along with that. Epiblast forms the layer, hypoblast forms the real fetus. ठीक है, अगर मैं जूम करती हूँ तो देखो ये ऊपर वाला एपीब्लास्ट है, नीचे वाला हाइपोब्लास्ट है. इवेंचुअली क्या हो रहा है, जस्ट सी द पिंक लेयर. दिस पिंक लेयर इज द एपीब्लास्ट and this brown one is hypoblast. ठीक है, eventually this brown one fetus and this pink one surrounded forming amniotic sac and amnion and chorion. Can you see amnion and chorion? जो बड़ा सा उसके ऊपर है वो amnion and chorion है by epiblast, और जो अंदर है brown color का that is hypoblast, that forms the fetus. That is everything is happening at day week 1 to 2. Now important thing starts happening at week 3. अब week पे बात करते हैं. Week 3 पे होता है, ये important है, remember gastrulation, where now the inner cell mass divides into the 3 layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. जब 3 लेयर बन जाती हैं इसे हम कहते हैं gastrulation, जो होता है week 3 पे. So week 3 is gastrulation. What is week 4? सबसे important structure बनता है neurulation. Neural tube. When the neural tube forms, that is the first organ that forms, that is happening at week 4. Week 4 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी होती है, heart starts beating. Heart now starts beating. You might not catch it on ultrasound, but heart starts beating at week 4. इसके बाद क्या आएगा? ठीक है, गैस्ट्रुलेशन हो गया, न्यूरुलेशन हो गया. अब बताते हैं डे 5 पे क्या होता है, सॉरी वीक 5 पे क्या होता है. सो 5 नंबर कैसा है? Like this. So fetus also takes this C form. Fetus takes a C form and limb buds appear. वीक 5 पे लिम्ब बड्स आने लगते हैं. ठीक है, और प्रॉपर लिम्ब्स आ जाते हैं वीक 6 पे. वीक 6 पे प्रॉपर लिम्ब्स आ जाते हैं एंड वीक 8 पे नाउ इट लुक्स लाइक अ प्रॉपर स्मॉल ह्यूमन. पूरा छोटा सा ह्यूमन बन जाता है एट वीक 8 एंड दिस इज द ड्यूरेशन व्हेन माय एम्ब्रियो फेज इज कंप्लीट. वीक 8 के बाद अब ये फीटस कहलाएगा. वाई विल आई कॉल इट फीटस? नाउ आई कैन रिकॉग्नाइज इट एज अ स्मॉल ह्यूमन. तो हमें क्या क्या वीक्स याद रखने हैं? व्हाट डू यू हैव टू रिमेंबर? पॉइंट नंबर 1, implantation starts at, please speak up with me, don't just sit and listen, please speak up with me, please just start. Implantation start at day 6 to day 10. ठीक है, then gastrulation start at, gastrulation मतलब ectoderm, mesoderm, endoderm, that gastrulation starts at week 3. Neurulation start at, neural tube formation start at week 4. Limb buds appear at week 5. Limbs proper appear at week 6 and 7. And embryogenesis is complete at week 8. Week 8 post fertilization, the embryogenesis phase is over. ठीक है, clear everyone? ठीक है, everyone was speaking up with me? तो ये याद हो गई मी स्टेजेस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर वन ऑन फीटस. ठीक है, वीक 8 पे एम्ब्रियोजेनेसिस खत्म. नाउ द फीटल स्टेज स्टार्ट व्हेन द ऑर्गन्स नाउ स्टार्ट फंक्शनिंग स्लोली. क्वेश्चन, by when does the fetal kidney start producing urine? Means by what time the kidney becomes functional? When do they, oh answer is written, I'm so sorry, मुझे हटा देना चाहिए था. 12 weeks. ठीक है, 12 weeks पे the kidney becomes functional. अब ध्यान रखो 12 weeks पे बहुत सारी चीजें होती हैं. लॉट ऑफ थिंग्स हैपन एट 12 वीक, यानी कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. क्या? फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट. फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट अपीयर्स एट 12 weeks. Fetus pancreas start secreting insulin at 12 weeks.
fetus thyroid start secreting thyroid at 12 weeks. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे हर ऑर्गन अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है. या आई नो, आई एम सॉरी, आंसर इज विजिबल. आई होप इट इज नॉट देयर इन नेक्स्ट वन. या सो 12 वीक्स पे यूरिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया. 12 वीक्स पे थायराइड ने अपना काम शुरू कर दिया. 12 वीक्स पे इंसुलिन प्रोडक्शन है स्टार्टेड. ठीक है. एंड 12 वीक्स पे ब्रीदिंग लाइक मूवमेंट. सी बच्चा अंदर ब्रीद नहीं कर सकता, देयर इज नो एयर. सो ब्रीदिंग लाइक मूवमेंट होती है, मूवमेंट दैट मिमिक्स ब्रीदिंग. सो ब्रीदिंग लाइक मूवमेंट स्टार्ट्स एट 12 वीक. फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे एवरी ऑर्गन स्टार्ट फंक्शनिंग. ठीक है. फीटल मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? व्हेन द बेबी स्टार्ट्स मूविंग, व्हेन द मदर स्टार्ट अप्रिशिएटिंग फीटल मूवमेंट. मदर को कब पता चलता है दैट बेबी इज मूविंग? 20 वीक्स. 20 वीक्स पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. 20 वीक्स पे व्हाट एल्स हैपन इज द केराटिनाइजेशन ऑफ द स्किन. केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन, दिस थिंग हैपन एट week 20. Because of that, now the amniotic fluid is majorly contributed by fetal urine at 20 weeks. Abhi tak amniotic fluid was formed by urine and the skin secretions of the baby. But 20 weeks tak kya hota hai? Skin keratinize ho jati hai. Now the only contributor of amniotic fluid is fetal kidney. If there is any problem with the fetal kidney, now it will start showing up. इससे पहले नहीं दिखेगा. If there is a problem with kidney, now the baby will develop oligomenoria. इससे पहले तो skin was forming amniotic fluid. But after 20 weeks, the amniotic fluid is contributed only by the urine. Very important function. ठीक है. 12 weeks पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, fetal swallowing. Fetal अपना amniotic fluid swallow करने लगता है. ठीक है. नो एमनियोटिक फ्लूइड पीक्स एट, बताओ कब एमनियोटिक फ्लूइड पीक करता है? व्हेन डज इट पीक? इट पीक्स इन द लास्ट ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर. 38 से लेके 40 वीक्स पे इट इज मैक्सिमम एंड आफ्टर दैट इट फॉल्स. इफ योर क्वेश्चन गिव्स बोथ, व्हेन द एमनियोटिक फ्लूइड इज हाईएस्ट, 38 भी दिया है 40 भी दिया है, मार्क 38. दैट इज द टाइम व्हेन द एमनियोटिक फ्लूइड इज हाईएस्ट, नॉट 34 वीक्स. ये क्लियर हो गया? 12 वीक्स पे क्या क्या आया? स्पीक अप विद मी, व्हाट इज कमिंग एट 12 वीक्स? फीटल ने ब्रीदिंग स्टार्ट किया, swallowing स्टार्ट किया, इंसुलिन सिक्रीशन स्टार्ट हुआ, थायराइड सिक्रीशन स्टार्ट हुआ. ठीक है. यूरिन सिक्रीशन स्टार्ट. ठीक है. ऑल दिस इज हैपनिंग एट 12 वीक्स. यस, यूरिन सिक्रीशन स्टार्ट होता है बेटा, यूरिनेशन स्टार्ट होता है. बट एमनियोटिक फ्लूइड का मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इज स्टिल द स्किन. So this is another question. Fetal urine becomes the major contributor for amniotic fluid at 20 weeks. 12 weeks पे वो थोड़ा थोड़ा यूरिन करता है, इतना नहीं करता कि that it will make amniotic fluid. It is very little only. No, it is 38 weeks now. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चलो. A patient in the labor room is being evaluated with cardiotocography. Uterine contractions are estimated at, देखो कितने contractions आ रहे हैं, 7 in 10 minutes. She is receiving oxytocin. What will you do? 7 contractions in 10 minutes. First of all, tell me, is this a good contraction? 7 in 10 minutes. Is this a good contraction or a poor contraction or excessive? What is it? Seven in 10 minutes. What is it? What kind of contraction it is? It's a excessive contraction. What is a good contraction? What's a good contraction? Four to 5 contractions in 10 minutes. Anything more than that is excessive contraction. So what will I do? I will stop oxytocin. ठीक है. I will stop oxytocin. ठीक है. चलो इसी क्वेश्चन के बहाने लेट्स नो 4 to 5. Now let's see the different decelerations also. ठीक है. फटाफट से different decelerations देख लेते हैं. 3 to 5, 4 to 5, it's a good answer, no problem. Anything less than 3 is bad, anything more than 5 is bad. Okay.
Now let's see the fetal decelerations. Should we come here? Okay. There are three kinds of fetal decelerations. NST पे यही questions आ सकते हैं. ठीक है? Different kind of fetal decelerations. Any deceleration that is just coinciding with the contraction. Contraction आया, deceleration आ गया. When it is coinciding, it is early deceleration. Why is early deceleration happening? होता क्यों है? क्यों होता है early deceleration? It is a phase because of head compression. When patient is in labor, head नीचे जा रहा है, it is going down, getting compressed in the pelvis. That is why it is happening. So do we have to take any step? Do we have to intervene? No. कुछ नहीं करना होता. They will go eventually. One is late deceleration. Late deceleration means when the contraction is peaking, then deceleration appear. वो आता तब है जब contraction is at peak. So it is following the contraction. वो थोड़ी देर बाद आ रहा है. It is coming just a little after. Why late deceleration happen? क्यों आता है? Good. Hypoxia, placental perfusion में problem है तब. So will I intervene? Absolutely. What will I do? I will stop oxytocin. I will make the patient lie in left lateral position. I will start the oxygen to the patient. I will definitely intervene. Now you tell me variable deceleration क्यों आता है? Variable deceleration मतलब it has nothing to do. It can come with the contraction, later than the contraction. It has no major relation with the contraction. That is variable. Why does the variable deceleration come? क्यों आता है? What is the reason for variable deceleration? Very good. Very good. Cord compression. So अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की. Good. So will I intervene? Cord is getting compressed. Patient तो labor में है. Will I intervene? Yes. Cord compress होगी तो baby will expire. No. So yes, same intervention I will put here only. I will put the same interventions and I will recheck for the fetal heart. These are the three kind of decelerations. ठीक है? Okay, done. चलो, next. एक और फीचर डिस्कस कर लेते हैं. What is good NST? Non-stress test. CTG और NST में डिफरेंस क्या है? That also I have told you. CTG is cardiotocography. दोनों चीजें. Change in the baby's heart according to the maternal contractions. ये दोनों चीजें आप मेजर करो. That is cardiotocography. It is done in labor. NST is non-stress test. You just measure the fetal heart. आप एक ही चीज देखते हो बस, fetal heart. इसको एंटीनेटल पीरियड में करते हैं. मदर को कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है. देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन. यू आर जस्ट सीइंग द फीटल हार्ट. सो एनएसटी के गुड फीचर्स क्या हैं? दैट द हार्ट रेट शुड बी समवेयर हियर 110 to 160 बीट्स पर मिनट. ठीक है, इसको एनएसटी रिएक्टिव कहेंगे जब हार्ट रेट यहां पे हो. एटलीस्ट 2 एक्सिलरेशंस इन 20 minutes. एटलीस्ट no deceleration. And the variability is, this is called as a good reactive NST. ठीक है? NST is done during the antenatal period and CTG is done in the labor. ठीक है, ये differentiation एकदम clear होना चाहिए. चलो, this is काफी discussion have been done on this question. Next question. Now everyone come on this question. This is live. This is live. What is the time taken for complete regeneration of the placental site? Please tell me what is the site. Placental site सबसे raw है, जहाँ पे प्लेसेंटा थी. तो obviously it will take long amount of time to regenerate. हमें अगर आंसर नहीं भी आता तो क्या हम आंसर गेस कर सकते हैं? Can we guess the answer? How much time a placenta will take to regenerate? पूरा पुरपेरियम ले लेती है. It takes whole puerperal phase. जो नॉर्मल यूट्राइन एंडोमेट्रियम है, जो बाकी एंडोमेट्रियम है, इट टेक्स ओनली 2 weeks. वो 2 weeks में रीजनरेट हो जाती है. But the placental site takes time. How much time? Whole puerperal period.
पूरे प्रिपेरियम पीरियड में प्लेसेंटल साइट रीजनरेट होती है। ठीक है, टेल मी अबाउट यूट्रस। हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कम बैक टू द नॉर्मल साइज, प्री प्रेग्नेंट साइज, कितना टाइम लगता है? नॉट 6 वीक्स, 4 वीक्स। यूट्रस रीजनरेशन यानी यूट्रस कमिंग बैक टू इट्स नॉर्मल साइज, इट टेक्स 4 वीक्स। सो यूट्रस 4 वीक्स में नॉर्मल साइज पे आता है, एंडोमेट्रियम 2 वीक्स में रीजनरेट हो जाती है, बट प्लासेंटा 6 वीक्स लगाती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चंस which can arise from here. What is the fundal height immediately after delivery? Immediately after delivery, where is the fundal height? Where is the fundal height at immediately after delivery? जल्दी बताओ। Immediately after delivery, where is the fundal height? Tell me, जब बच्चा डिलीवर हो गया, where will be your fundus? यूट्राइन फंडस कहाँ पे होता है immediately after delivery? अरे, वेरी गुड, वेरी गुड। नो, अम्बिलिकस पे आ जाता है। इट कम्स एट द अम्बिलिकस। ठीक है, इट इज एट द अम्बिलिकस, एट द अपर बॉर्डर ऑफ अम्बिलिकस। ठीक है, नॉट बिटवीन, इट इज एट द अम्बिलिकस। और उसका वेट कितना होता है? 1 kg। वेट इज 1 kg, इट इज एट अम्बिलिकस। नाउ रिमेंबर, इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, इट स्टेज देयर फॉर 24 आवर्स। तो पोस्टपार्टम डे 1 पे वो वहीं रहता है। पोस्टपार्टम डे 2 पे इट इज 1 फिंगर ब्रेथ बिलो। आई एम टेलिंग यू ऑल दी पॉसिबल क्वेश्चन दैट विल, देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। ओ माय गॉड, it is lot of wind, stormy kind of wind coming up. Yes, ये क्वेश्चन आएंगे। एट डे 2 वेयर इज द फंडस? इट इज नॉट 2 फिंगर बिलो, इट इज 1 फिंगर बिलो। एट डे 3 वेयर इज द फंडस? 2 फिंगर बिलो। क्यों? क्योंकि 24 आवर्स के लिए वो अम्बिलिकस पे था, स्टैटिक था वहां पे। ठीक है, सो डे 2 पे इट इज 1 फिंगर बिलो, डे 3 पे इट इज 2 फिंगर बिलो। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी क्लिनिकल क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फंडा सबको समझ में आया? वेयर इट विल बी एट डे 2 एंड वेयर इट विल बी एट डे 3, ये आपको समझ में आया? चले आगे। So where it will be after delivery at the umbilicus. It stays there for 24 hours and then it starts involuting at rate of 1.25 centimeter, also called as 1 finger breadth, also called as half inch, all is same, per day. Per day. After 1 hour, what is this after 1 hour? 1 hour, यार ये क्या क्वेश्चन हुआ? आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर वही रहेगा। 24 आवर्स के लिए अम्बिलिकस पे है ना, तो वही रहेगा। ठीक है, राइट, दिस इज द इन्वॉल्यूशन रेट, 1.25 सेंटीमीटर, 1 फिंगर ब्रेथ और हाफ इंच, और एवरीथिंग इज सेम। पर डे वो इतना इन्वॉल्यूट करता है। ठीक है, चलो। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ आईयूसीडी इंसर्शन इन करेक्ट सीक्वेंस। आईयूसीडी को इंसर्ट करना है करेक्ट सीक्वेंस में, लेट्स अरेंज देम। प्लीज अरेंज देम in the correct sequence. What will I do first? First, I will perform a pelvic examination. This will be my first step. Then I'll grasp the cervix, है ना? ठीक है, देन माउंट द डिवाइस। डिवाइस को निकालने से पहले हमेशा उसे माउंट करते हैं। माउंट करते हैं मतलब प्रॉपर्टी ऐसे पड़ा होता है इन द पैकेट, यू हैव टू माउंट इट, मीन्स यू हैव टू लोड इट लाइक दिस। आपको ऐसे उसके आर्म्स को लोड करना पड़ता है एंड देन यू रिमूव इट, इसे कहते हैं लोडिंग। इट इज एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस, एट द अपर बॉर्डर ऑफ अम्बिलिकस। ठीक है, सो आपने पहले ये किया, फिर ये किया, देन आपने माउंट किया डिवाइस को, देन यू पुश्ड इट इन यूजिंग द विड्रॉल टेक्निक एंड देन यू इन द एंड कट द थ्रेड। सिंपल।
एक चीज मिसिंग है, दैट यू फर्स्ट, अगर आएगा बीच में, इफ इन द ऑप्शन कम्स यूजिंग अ यूट्राइन साउंड, यू टेक द यूट्रो सर्वाइकल लेंथ. ठीक है, यू टेक द यूट्रो सर्वाइकल लेंथ एंड दैट विल बी द स्टेप 3. यूट्रो सर्वाइकल लेंथ लेते हैं, फिर माउंट करते हैं एंड फिर यू पुश इट इनसाइड. ठीक है. ओके. विड्रॉल, पुल टेक्निक मतलब विड्रॉल टेक्निक. ओके. दिस इज हाउ इट इज. मल्टी लोड को आपको लोड करने की जरूरत नहीं होती. मल्टी लोड इज इंट्रोड्यूस एज सच ओनली. कॉपर टी 380A को लोड करना पड़ता है. ठीक है. यू हैव टू लोड इट एंड देन यू इंसर्ट इट. चलो कॉपर टी के बारे में डिस्कस करते हैं. दिस इज कॉपर टी 375 provided by government of India at free of cost. What is the validity? What is the efficacy for this copper tea? For how long it is efficacious? Both of them. What is the efficacy for both of them? Very good. Very good. No, why? There is no range. In copper tea, there is no range. या तो 3 पे निकलवा लो या 5 पे. नहीं भाई. It is 5 years. 3 to 5 कुछ नहीं होता. In contraception, there is no range. आपको आज टैबलेट लेनी है तो आज लेनी है. आज ले सकते हो, कल भी ले सकते हो, परसों भी नहीं. There is no range. So it is 5 years. Copper tea 380 10 years. Please don't put a range here. ठीक है. 380 को 10 years में निकालना है, 375 को 5 years में निकालना है. कैन आई रिमूव इट बिफोर टाइम? ऑब्वियसली कर सकते हैं. व्हाट इज इंपॉर्टेंट टाइमिंग ऑफ इंसर्शन फॉर कॉपर टी? बोथ ऑफ देम 10 years नहीं है. कॉपर टी 375 का ये 5 याद रखो, यहाँ पे 5 years है. ये याद रखो, यहाँ पे 10 years है. ठीक है. चलो, टाइमिंग ऑफ इंसर्शन. इट कैन बी इंसर्टेड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी. कैन इट बी इंसर्टेड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी? इसको बोलते हैं पोस्टपार्टम. अगर पोस्टपार्टम मिस, पोस्ट प्लेसेंटल मिस हुआ तो विद इन 48 hours. ठीक है. विद इन 48 hours भी मिस किया तो आफ्टर 6 weeks. देन आफ्टर 6 weeks. So it has to be inserted within 48 hours of delivery. If those 48 hours are missed, then after 6 weeks, not 6 months, after 6 weeks. ठीक है. ओके. चले आगे. ओके. चलो. A 29-year-old married woman with 10 weeks of, अच्छा, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था ये अपने इंस्टा पे. अगर एबॉर्शन, ये तो डिलीवरी का हुआ, अगर एबॉर्शन हुआ है तो if someone has undergone abortion, then you can insert it immediately. अगर सर्जिकल एबॉर्शन आपने किया है, then you can insert it immediately and you can insert it within 12 days. Within 12 days, anytime you can insert it. This is according to our abortion care guidelines. ठीक है. सो डिलीवरी में या तो इमीडिएटली डाल दो या फिर विद इन 48 hours. एबॉर्शन में या तो इमीडिएटली आफ्टर एबॉर्शन डाल दो या फिर विद इन 12 days. ठीक है. ओके. आई थिंक दिस इज न्यू. प्लीज नोट डाउन. ओके. Medical abortion में you will insert it only after confirming that the abortion is complete, which is done after 15 days. After 15 days, after confirming the abortion is complete, since it's medical abortion. Most common side effect is bleeding, but I have little confusion. I think I'll make a video on it on my channel, whether bleeding is most common or pain. I am more towards bleeding, but I'll give you the exact data and then I'll just put it on a video, or I'll put it on your group. I'll ask somebody to put it on your group. If there is a pain after copper T, then what is NSG responsible? What is? I don't get it. Please write down what is NSG responsibility. If there is pain after copper T, give the painkillers and reassurance. That's the answer. Chalo, next question.
A 29-year, I'll check whether it is pain. It's a good question, but I'll check which is given more preference, which is more common side effect, pain or bleeding. Okay, then I'll put in your group. A 29-year-old married woman within 10 weeks of amenorrhea presents with painless bleeding. Painless bleeding. Her UPT positive, ultrasound show empty uterus. It means there is an ectopic pregnancy, but adnexa is also clear. So everyone is suspecting it is cervical pregnancy. Everything is in favor except when the ectopic is in cervix, cervix enlarge. It becomes huge, it becomes bloated. It looks like a barrel shaped cervix. Okay? External os open gets open. It looks like this. External os gets opened a little. External os भी थोड़ा सा open हो जाता है. But can you see internal os? It doesn't open. It will not open because then this ectopic is not cervical. Then it will be endometrial. It will be normal pregnancy. So internal os stay close. क्योंकि इंटरनल os के नीचे cervix है. So your internal os is not open. It is closed. Cervix is starting below the internal os and pregnancy is below the internal os. It doesn't open. External os open. Cervix is huge, bloated. One important thing is the only ectopic that has a profuse bleeding. Only ectopic pregnancy that has a profuse bleeding is cervical. Ectopic pregnancy में profuse bleeding नहीं होती है, spotting होती है. Only ectopic pregnancy, if question gives you there is an ectopic pregnancy, patient is having profuse bleeding, it is cervical. Features they have mentioned, when you examine, cervix is large, bloated, external os is small, slightly open. When you do ultrasound, people get confused, it might be an abortion, it might be ectopic. Abortion भी हो सकता है, ectopic भी हो सकता है. What will question give you? Sliding sign negative. When a probe is pressed on the abdomen, this pregnancy is tightly attached to the cervix. It will not slide. वो cervix से tightly attached, it will not slide. If it is an abortion, एक abortion हो रहा है, if you press with the probe, it will slide. Sliding sign positive is abortion, sliding sign negative is cervical ectopic. ठीक है, ये चीज याद रखनी है. Right? Sliding sign is negative in cervical ectopic. चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं. Next question. An RH negative primary gravida has second trimester abortion. Okay. ICT was negative. ICT negative का क्या मतलब हुआ? उसका ICT negative था. She has not formed antibodies yet. उसने अभी antibodies form नहीं की. She has not formed antibodies yet. Yes, the treatment is surgical. The treatment for cervical ectopic is surgical removal. ठीक है? Now, according to ACOG guideline, which of the following is done to prevent RH isoimmunization? So, second trimester में हम क्या देंगे to prevent isoimmunization? Very good. Let's change a question. ICT was done and it was positive. What will you give to prevent isoimmunization? If ICT is positive, what will you give to prevent isoimmunization? Then what will be the answer? अगर मैं लिखती हूँ ICT is positive, then what will be the answer? Please tell me what will be the answer. All of you have answered correctly अभी तक. If ICT is positive, मतलब antibodies have formed. What will I give now? What will I give now to prevent abortion? Anti-D. This is only anti-D. ये anti-D ही तो है. Anti-RH antibody is anti-D only. This is anti-D. This is same. If patient is ICT positive, पहले answer my question. Patient का abortion हो गया है, तो cerebral artery scan किसका करेंगे हम? Patient का abortion हो चुका है. Her ICT has come out to be positive. What will I give to prevent isoimmunization?
सेरेब्रल डॉपलर किसका? शी हैज जस्ट गॉन एन अबॉर्शन, तो किसका सेरेब्रल डॉपलर करेंगे? व्हाट विल यू गिव? नो ट्रीटमेंट. It is a sensitized pregnancy. That will be your answer. It is already a sensitized pregnancy. I am not gonna give anything. जब ICT पॉजिटिव आ गया ऑलरेडी, ठीक है, देर इज नो इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर दैट, राइट? Yes, it will not work. Once the sensitization has happened, it will not work. I am not gonna give anything. There is no use of giving anything. I am giving here because it is ICT negative. ठीक है. सो वेन एवर आईसीटी पेशेंट हैज नेगेटिव आईसीटी, मतलब उसने एंटीबॉडी फॉर्म नहीं की है, देन ओनली आई विल गिव एंटी डी. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी 20 वीक से पहले एंटी डी देते हैं, जिसकी डोज है 150 mcg. अकॉर्डिंग टू द इंडियन गाइडलाइंस इट इज 150 mcg. अगर हम 20 वीक्स के बाद देते हैं देन इट इज 300 mcg. ठीक है. Okay, 150 and 300. अब 50 mcg वाला protocol has been gone. Now there is no protocol of 50 mcg. The Foxy guidelines now say, in fact, ये 2 साल से they are saying that less than 20 weeks है abortion 150 mcg, after 20 weeks है 300 mcg. पेशेंट अगर आईसीटी पॉजिटिव आया है, आपने अबॉर्शन किया, पेशेंट आईसीटी पॉजिटिव है, क्या दोगे? कुछ नहीं दोगे, नथिंग. When she will get pregnant again, आई विल डू दी आईसीटी टाइटर. तब मैं आईसीटी टाइटर करूंगी देखने के लिए कि टाइटर इज नॉट वेरी हाई दैट इट विल हार्म माई बेबी. बट आई कांट प्रिवेंट सेंसिटाइजेशन नाउ, वो हो चुका. ठीक है. ओके. यस, लेस देन 12 वीक्स 150 mcg, करेक्ट. अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है, आईसीटी पॉजिटिव आया, तो बताओ क्या करेंगे? फर्स्ट प्रेगनेंसी आईसीटी पॉजिटिव आया तो वी विल डू दी आईसीटी टाइटर every 4 weeks. And as my ICT titer crosses the threshold, now I will start doing the cerebral artery Doppler. यहाँ पे करते हैं किसका? बेबी का. बेबी का cerebral artery Doppler करेंगे, because that will tell me कि भाई आपकी बेबी को क्या हो रहा है? अनीमिया. Your baby is developing anemia. Please take the baby out. अगर आईसीटी पॉजिटिव आता है तो, और नेगेटिव आता है तो वी विल गिव एंटी डी. ठीक है. क्लियर है सबको? व्हाट इज द डोज ऑफ एंटी डी पता है? हमारी कंट्री में मेडिकल एबॉर्शन हुआ है, सर्जिकल एबॉर्शन हुआ है, एक्टॉपिक है, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल, व्हाटएवर, सब में एंटी डी देते हैं. इन आवर कंट्री एबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ है, मेडिकली किया है, सेकेंड में किया है, मेडिकली किया है, जो भी है, यू गिव एंटी डी इन ऑल द पेशेंट्स. वाई एम टेलिंग यू सो? डब्ल्यूएचओ में ऐसा नहीं है. डब्ल्यूएचओ में मेडिकल मैनेजमेंट में वो एबॉर्शन में नहीं देते, बट अकॉर्डिंग टू आवर गाइडलाइन वी गिव एंटी डी टू ऑल. ठीक है. चले नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, फर्स्ट प्रेगनेंसी में एंटी डी देते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में आईसीटी हमेशा नेगेटिव ही होता है, बट फिर भी चेक करके देते हैं. ठीक है. एंटीनेटल प्रोफाइलेक्सिस, चलो ये तो अबॉर्शन के लिए था. एंटीनेटल प्रोफाइलेक्सिस कब करते हैं? रूटीन एंटीनेटल एंटी डी प्रोफाइलेक्सिस कौन से वीक में करते हैं? 28 वीक्स में. कब? व्हेन शी इज आईसीटी नेगेटिव. All the pregnant women ICT negative are given a routine prophylaxis at 28 weeks, which is 300 mcg. Very, very important. 300 mcg देंगे, 28 हफ्ते पे देंगे to everyone who is ICT negative. ठीक है. चलो चले आगे. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द डोज ऑफ लीवोनॉर्जेस्ट्रिल इन माला डी? आई हैव टोल्ड यू, मैंने क्लास ली थी कॉन्ट्रासेप्शन पे, मैंने कहा था वट एवर इज अवेलेबल फ्री ऑफ चॉइस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसकी डोजेजेस पता होनी चाहिए. सो व्हाट इज द डोसेज ऑफ लीवोनॉर्जेस्ट्रिल इन माला डी? बताओ. व्हाट इज द डोसेज ऑफ एन? यस, हर प्रेगनेंसी में एंटी दिया जाता है बेटा अगर नेगेटिव है तो. क्यों? यू वांट टू प्रिवेंट आइसोइम्यूनाइजेशन, है ना.
जब आईसीटी नेगेटिव है तो आप प्रिवेंट करोगे फर्स्ट में क्या, हर प्रेगनेंसी में? करेक्ट. द डोज इन माला डी इज 150 mcg. Levonorgestrel. Who will tell me the dose of ethinyl estradiol? Who will tell me the dose of ethinyl estradiol in Maladi? What is the dose of ethinyl estradiol in Maladi? What is the dose of ethinyl estradiol in Maladi? चलो बताओ, what is the dose of ethinyl estradiol in Maladi? Very good. Good. Good girl. 30 mcg. ठीक है, 30 mcg को आप क्या बोलोगे? 0.03 मिलीग्राम. ऐसे ही 150 mcg को आप और क्या बोलोगे? 0.15 मिलीग्राम. ठीक है, दिस इज द डोज. चलो बाकी जो चीजें फ्रीली अवेलेबल है, लेट सी द अमाउंट इन देम आल्सो. सो ऐसे याद रखो, माला डी में कितना है लीवोनॉर्जेस्ट्रेल? 150 mcg है, 0.15 मिलीग्राम है. चलो एक फ्रीली अवेलेबल इमरजेंसी पिल मिलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, फ्रीली अवेलेबल, इजी पिल. इट इज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव available free of cost in our government hospital. What is the dose of levonorgestrel here? ऐसे याद रखो, माला डी में कितना था लीवोनॉर्जेस्ट्रेल? 0.15. उसका 10 टाइम्स है 1.5, क्योंकि आपको सिंगल डोज लेनी है ना. यू हैव टू टेक द सिंगल डोज, नो, सो दैट इज 10 टाइम्स ऑफ दैट. सो लीवोनॉर्जेस्ट्रेल इन इजी पिल इज 1.5 मिलीग्राम. ठीक है, एक और प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, अंतारा. व्हाट इज द डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हियर? सिंस यू आर गिविंग वन इंजेक्शन ओनली फॉर 3 months, इसका 100 टाइम्स 150 मिलीग्राम. कैसे याद रखा? माला डी में था 0.15, उसका 10 टाइम्स हुआ इजी पिल में, उसका 100 टाइम्स हुआ अंतारा में. ठीक है, nobody will ask beta Zuspi method is obsolete. It is obsolete. I told you only because of your knowledge, but it is now obsolete, so nobody is gonna ask. ठीक है, so 150 मिलीग्राम इन अंतारा. एक और चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेंटक्रोमन छाया. इट हैज ऑर्मिलॉक्सोफिन. I told you, remember, it is a 1 week pill, weekly pill. So ऑर्मिलॉक्सिफिन की क्या डोसेज है? 30 मिलीग्राम. डोंट रिमेंबर एवरीथिंग एल्स. देखो हम बहुत ज्यादा याद नहीं कर सकते. ठीक है, ठीक है, वी कांट. अंतारा का अपडेट है. व्हाट इज द अंतारा अपडेट? प्लीज टेल मी. वी कांट रिमेंबर एवरीथिंग, सो वी विल रिमेंबर ओनली व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल द फ्रीली अवेलेबल मेथड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो ये सब की आपको डोसेज याद रखनी है. ठीक है, ओके, राइट, ओके. दिस इज अ वीकली पिल. नाउ अंतारा का क्या अपडेट है? प्लीज टेल मी. साइना प्रेस इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट राइट नाउ. साइना प्रेस कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी तो हुआ है 2021 या 23 में. सो इट इज नॉट इन आवर नेशनल फैमिली प्लानिंग बास्केट ऑफ चॉइस, नो. साइना प्रेस एक सब क्यूटेनियस इंजेक्शन है, बहुत अच्छा इंजेक्शन है जो अभी मार्केट में मिलने लगा है. द डोज इज 104 मिलीग्राम. इट इज ओनली फॉर 3 months. इट इज ऑल्सो फॉर 3 months. सब क्यूटेनियस इंजेक्शन है, बट इट इज नॉट देयर इन आवर नेशनल फैमिली प्लानिंग ऑफ चॉइसेस राइट नाउ. अभी वो उसमें नहीं आया. हो सकता है आ जाए, हो सकता है इवेंचुअली गवर्नमेंट ले आए, लेकिन अभी नहीं आया. लेकिन हाँ, इट्स अ गुड ड्रग. इट इज गिवन सबक्यूटेनियस, पेशेंट कैन टेक इट बाय देमसेल्फ. इट डज नॉट नीड रेफ्रिजरेशन. जैसे अंतारा को रेफ्रिजरेशन चाहिए, इसको रेफ्रिजरेशन नहीं चाहिए. यू कैन यूज इट इन रूरल एरियाज, दैट इज वाई इट इज वेरी गुड. ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं. Vaginal delivery is complicated and the maneuver shown is this. Despite correct technique, fetal shoulders doesn't come. What is the next step? तो क्या करा उन्होंने? fetal shoulder नहीं आ रहे. What are they doing? They are doing Mac Roberts and suprapubic pressure. दो चीजें कर दी. Mac Roberts, suprapubic pressure and the axial pull. Now what will they do next? They will perform the internal maneuvers. ठीक है, what will they do? They will do the internal maneuvers. Now it is the turn for internal maneuvers. तो चलो इमेजेस देख लेते हैं. पहली बात, व्हाट इज शोल्डर डिस्टोशिया? व्हाट इज शोल्डर डिस्टोशिया? इफ माय हेड कम्स, बेबीज हेड कम्स, बट द शोल्डर्स डजंट फॉलो इवन आफ्टर 1 minute. जस्ट अ सेकेंड.
गोल्डी, 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 बच्चे ना मेरे चाय में चाय बेटा थोड़ी प्लीज। थैंक यू। व्हाट इज शोल्डर डिस्टोशिया? हेड कम्स, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कब बोलेंगे शोल्डर डिस्टोशिया? हेड कम्स, शोल्डर डजंट कम इवन आफ्टर 1 minute। व्हाट इज माई फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप एक्सियल ट्रैक्शन। पहला स्टेप होता है एक्सियल ट्रैक्शन देना। ठीक है, एक्सियल ट्रैक्शन दिया, suprapubic pressure and Mac Roberts, suprapubic and Mac Roberts, they are done together. If it doesn't help, then I go to the internal maneuvers. Internal maneuvers matlab now I insert my hand inside. Correct, turtleneck sign, correct, very good. Now I insert my hand inside and rotate the baby. ठीक है, so this image is, remember images are very much asked. Maneuvers, हाँ maneuvers करते हैं ना, चलो. So first is axial traction. Second is suprapubic and macrobursts are done together. But if the examiner is so, what will I use? Itna, if it's such a nalayak examiner, he still asks among these two. The answer is the answer is macrobursts first, followed by suprapubic. ठीक है? So macrobursts and then suprapubic. If it doesn't work, I go to internal rotation. इंटरनल रोटेशन दो तरह का होता है. ठीक है, देखो हर चीज में जरूरी नहीं है हम निमोनिक याद करें, बहुत सारे निमोनिक हो जाते हैं, ये बहुत बेसिक है. आप पहले एक्सियल ट्रैक्शन दोगे, मैक रॉबर्ट्स करोगे, देन सुप्राप्यूबिक दोगे, है ना. ठीक है, लो जूम कर देते हैं. ठीक है, राइट, दिस इज वन इमेज, दिस इज internal rotation. Now insert your hand inside. When you use just one finger on the posterior of my shoulder and rotate it, एक फिंगर से आपने ऐसे रोटेट किया है, फिंगर से ऐसे, दैट इज रूबिन्स मैनोवर. ठीक है, रूबिन्स टू मैनोवर. नहीं हो रहा, दो फिंगर यूज करो, वन पोस्टीरियरली वन एंटीरियरली. नाउ रोटेट, वुड्स कॉक्सक्रू. सो दिस यूजिंग वन फिंगर इज रूबिन्स, यूजिंग टू फिंगर्स लाइक दिस इज वुड्स कॉक्सक्रू. आई होप यू आर सीइंग मी. मेरी इमेज बहुत छोटी आ रही है, उसमें मुझे देखो. Try seeing me. This is Wood's corkscrew. These are internal rotation. If internal rotation doesn't work, I turn the mother in all four positions. What is this? What is this? This is Gaskin maneuver. Gaskin maneuver. I turn the mother prone. If Gaskin maneuver doesn't work, what will I do? I will fracture the clavicle so that ये diameter कम हो जाए. क्या कहते हैं उसको? Cledotomy. अब ऑब्वियसली आप कुछ फ्रैक्चर कर रहे हो, आप कुछ तोड़ रहे हो, दैट विल बी अ लेट प्रोसीजर, नो. वो लेट चीज है. क्लिडोटमी भी काम नहीं कर रही, इट इज नॉट वर्किंग. व्हाट विल आई डू? आई पुश द बेबी इनसाइड एंड टेक द बेबी फॉर सिजेरियन. ठीक है, जावानेली, वेरी गुड. आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी है, बस होप्स रखो एंड जस्ट बी होपफुल. और अब ये थोड़े से जो 4 दिन बचे हैं, बस लग के मेहनत करनी है, लग के बस जो है, बस सिर्फ खाना है और पढ़ना है, खाना है और पढ़ना है, और हाँ सोना भी है बीच में. ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है. वेदर बहुत अच्छा है, मन करेगा कि लेट्स गो आउटसाइड एंड टेक अ वॉक. सिर्फ थोड़े दिन की बात है, बिल्कुल जान लगा दो. ठीक है, योर प्रिपरेशन इज ऑलरेडी गुड. ठीक है, बहुत सीट्स है, सब लोग अकोमोडेट हो जाओगे, डोंट वरी, जस्ट जस्ट गिव योर बेस्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉर्मल यूट्रस एंड वजाइना विद स्ट्रीक गोनाड्स एंड 46XY, व्हाट इज इट? स्ट्रीक गोनाड्स एंड 46XY क्या है ये? जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट. हाँ, नहीं यूज करते. क्लिडोटमी इज नाउ आउटडेटेड ओनली. नो, दिस इज द सीक्वेंस इन विच इट इज डन. आपसे क्वेश्चन थियोरेटिकल आएगा, बट क्लिडोटमी इज देयर इन दो सीक्वेंस. उस सीक्वेंस में क्लिडोटमी अभी भी है. सीक्वेंस क्या है? एक्सियल ट्रैक्शन, मैक रॉबर्ट्स, सुप्राप्यूबिक. These are external maneuvers, not working, go to internal maneuvers. Rotation. ठीक है, रोटेशन के अलावा यस, स्वीपिंग आउट द पोस्टीरियर शोल्डर. पोस्ट एंटीरियर नहीं आ रहा, पोस्टीरियर शोल्डर निकाल लो. स्वीपिंग आउट पोस्टीरियर शोल्डर, इंटरनल रोटेशन. नॉट वर्किंग, गैस्किन मैन्यूवर. नॉट वर्किंग, क्लिडोटमी और जावानेली.
दोनों ही दिया है, लास्ट में कोई नहीं देगा. नोबडी आस्क यू व्हाट इज द लास्ट ऑप्शन. Nobody will ask you. Even if they ask, Zavanelli is the last option. It is Swyer syndrome. Streak gonads X0, Turner syndrome. Streak gonads XY, Swyer syndrome. Streak gonads XX, pure gonadal dysgenesis. क्या बोलते हैं? Pure gonadal dysgenesis. In all three of them, uterus and vagina are present. Remember, uterus, vagina normal होता है. In all three of them, breast absent. ठीक है? ठीक है, सब में स्ट्रीक गोनाड्स है, ब्रेस्ट एब्सेंट है. कैरियोटाइप विल टेल यू व्हाट द पैथोलॉजी इज. एंड्रोजन एंड एमआरकेएच दोनों. यूटरस एंड वजाइना एब्सेंट. इन तीनों का एकदम ऑपोजिट. यूटरस वजाइना एब्सेंट, ब्रेस्ट डेवलप्ड. So what is the differentiating point? Differentiating point we have discussed in our class. Lot of differentiating point. Androgen insensitivity में karyotype दे देंगे ये लोग. Either they can give you karyotype or they will give you ovaries present on ultrasound. Here no gonads seen. या फिर टेस्टिस होते हैं ना, सो दे विल गिव यू टेस्टिस. को कैसे बताते हैं? हाउ द एग्जामिनर विल टेल यू द टेस्टिस? इंग्वाइनल मासेस. दे विल टेल यू इंग्वाइनल मासेस. और दे विल गिव यू मासेस इन द स्क्रोटम. लेबियल, नो स्क्रोटम, स्क्रोटम है ही नहीं. लेबियल मासेस. सो लेबियल मासेस और स्क्रोटल मासेस आर एक्चुअली द टेस्टिस. दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, नो प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर. नो प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर. इसमें एवरीथिंग इज नॉर्मल. Pubic and axillary hair are present. She is XX. She has ovaries. It's just that she doesn't have uterus vagina. ठीक है? So these features will be given. Okay, easy to differentiate. मुझे लगता है ये तो काफी आसान टॉपिक है. चलो. Primary gravida in active labor present diamond shaped fontanelle. मतलब anterior fontanelle is felt and it is lower than the triangular fontanelle. इतने clinical question है. ट्राइंगल फॉन्टेनेल पता होना चाहिए, वो पोस्टीरियर है, डायमंड वाला एंटीरियर है. इफ यू नो देन ओनली यू विल इमेजिन बच्चा कैसे लेटा है. सो दीज आर सो क्लिनिकल क्वेश्चंस. सो यू आर फीलिंग एंटीरियर फॉन्टेनेल एंड यू आर फीलिंग द नोज. यू आर नॉट फीलिंग द चिन. सो व्हाट आर यू फीलिंग? यू आर फीलिंग दिस मच ओनली. ठीक है, यू आर फीलिंग ओनली दिस मच. सो व्हाट इज द प्रेजेंटेशन? पहले बताओ व्हाट इज द प्रेजेंटेशन. एमिनरी टॉपिक लिया था क्लास में इतना बड़ा, फिर से you want again? I can take revision class. Yes, that's not an issue. पहले बताओ what is the presentation? It is I'm seeing only this part of the baby, only this part. Brow. It is brow. So brow में क्या आंसर होता है? Mento vertical. तीन ही प्रेजेंटेशन होती है. हेड कंप्लीटली फ्लेक्स्ड. आई कैन फील द ऑसिपिट. आई कैन फील द ऑसिपिट. व्हाट इज द प्रेजेंटिंग डायमीटर? सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक. Very good diameter of 9.5. If I'm feeling the forehead, the root of nose and this anterior fontanelle, it is brow. Very large diameter, mento vertical. Can it deliver normally? No, it cannot. When I'm feeling the chin, I am feeling the brows. I'm feeling chin, nose and brows. What I'm feeling? I'm feeling face. What is the diameter? Submento. Mentum के नीचे. Submento brachmatic. ये था. First one was suboccipito brachmatic. ये है submento brachmatic. सेम है, सबमेंटो ब्रेगमेटिक. डायमीटर इज ऑल्सो 9.5. ठीक है, ओके, क्लियर है. चलो आगे. फेस. A 28-year-old lady come to your OPD with complaints of very beautiful question. मतलब पूरा क्लिनिकल आना चाहिए. Noun foul smelling, curdy discharge with itching. pH is still acidic. Causative organism is showing germ tubes. समझ में आ गया इन्फेक्शन क्या है? You got it, what is infection? But the question is not this. Question is how will you treat the partner? How will you treat the partner? Candidiasis, perfect. How will you treat the? अब देखो मुझे पता था. You will think candidiasis, you will just come on to the treatment immediately.
I knew it. I knew it. Can you see what are they asking? How will you treat her partner? Please remember my class. आप सबको ट्रीटमेंट आता है, ये मैं समझ गई देखकर, बट ये पता है नहीं पता है दैट वेदर आई ट्रीट पार्टनर इन फंगल इन्फेक्शन और नॉट. यस, होता है. इसको देख के अर्ज होता है कि अरे यार ये कैंडिडियासिस एक ट्रीटमेंट का है. नो, आई एम आस्किंग ट्रीटिंग द पार्टनर. डू आई ट्रीट पार्टनर इन कैंडिडियासिस? इट इज नॉट एन एसटीआई. यस, ओनली व्हेन सिम्टम्स अपीयर देन ओनली आई ट्रीट द पार्टनर. कितने सारे तुम लोगों ने सबने बी लिखा था ना, है ना? इट इज अ कॉमन मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यही सीखना है, यही सीखना है. क्या? पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10 तक काउंट करते हैं, जस्ट काउंट, जस्ट वेट एंड देन आंसर. जंप नहीं करते एक्साइटमेंट में. ठीक है? ठीक है. सो इफ इट इज अ green discharge, so question comes, greenish discharge with itching and fishy odor, what is it? ग्रीनिश डिस्चार्ज है, इचिंग है, फिशी ओडर है, व्हाट इज इट? ट्राइकोमोनास वेजिनालिस. हमने इन्फेक्शन बहुत डिटेल में किया है. इट इज ट्राइकोमोनास. व्हाट विल आई सी ऑन माइक्रोस्कोप? आई विल सी मोटाइल ऑर्गेनिजम्स. मुझे प्रॉपर मोटाइल ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. विल आई ट्रीट द पार्टनर? यस. व्हाट विल आई यूज? आई विल यूज मेट्रोनिडाजोल. ठीक है. ग्रेइश डिस्चार्ज. एक सेकेंड. हेलो यार, मैं क्लास में हूँ. घर पे क्लास में लाइव सेशन लिखा है एनएनएल का. ठीक है, घर पे क्लास में, घर पे. इट्स अ ग्रेइश, इट्स अ ग्रेइश डिस्चार्ज. इचिंग देखो लिखी होगी. कैंडिडियासिस में एक्सेसिव इचिंग होती है, बाकी इन्फेक्शन में माइल्ड इचिंग होती है. इचिंग है, इसमें भी फिशी ओडर होती है. इनफैक्ट फिशी ओडर इज वेरी प्रोमिनेंट इन व्हाट? बैक्टीरियल वेजिनोसिस. हु विल टेल मी द टू स्कोर्स फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस? न्यूजेंट्स क्राइटेरिया पढ़ा था हमने, न्यूजेंट्स क्राइटेरिया और एम्सर्स क्राइटेरिया, यही पढ़े थे हमने दो, है ना? Will I treat the partner? Will I treat the partner in bacterial vaginosis? It's not. It's not a sexually transmitted infection. I will give metronidazole to the patient, but not to the partner. Very severe itching, पूरा erythema, redness, pH still acidic. बाकी सब में pH alkali हो जाता है. Only one where pH is acidic. No smell. It has no smell. Candida. What will I give? I will give fluconazole. Will I give it to partner? No. ठीक है? ओके. दीज आर वेजिनाइटिस. ये सब वेजिनाइटिस है. सर्विसाइटिस कौन करता है? सर्विसाइटिस कौन करता है? हु कॉजेज सर्विसाइटिस? मेरा पेन अच्छे से नहीं चल रहा है. माई राइटिंग इज नॉट दैट बैड, बट माई पेन इज नॉट वर्किंग. माई पेन इज जस्ट नॉट हेल्पिंग मी आउट. माई राइटिंग इज स्टिल बेटर. सर्विसाइटिस कौन करता है? गोनोरिया और क्लमाइडिया. Who will tell me the treatment? I don't know why it stops working always. What is the treatment for chlamydia and gonorrhea? क्या ट्रीटमेंट है? यस, यू विल सी इन्फ्लेमेशन इन सर्विक्स. गोनोरिया का ट्रीटमेंट क्या है? सेफ्ट्राइक्सोन, सिंगल डोज, आयन. क्लमाइडिया का क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस डॉक्सीसाइक्लिन, 100 मिलीग्राम BD फॉर 7 days. इफ शी इज प्रेग्नेंट, अजिथ्रोमाइसिन. आप प्रेगनेंसी में डॉक्सीसाइक्लिन नहीं दे सकते, आप सेफ्ट्राइक्सोन दे सकते हो. सो दिस इज द ट्रीटमेंट इन प्रेगनेंसी ऑल्सो. हियर एजिथ्रोमाइसिन 1 gram. विल आई ट्रीट द पार्टनर? विल आई ट्रीट द पार्टनर? यस. दे आर STI. आई विल ट्रीट द पार्टनर. उसको भाई हम राखो, हम भाई आए तनको तुरंत आवती है. ठीक है एवरीवन, गॉट इट? चले आगे. अरे इसको हटाओ यार. ठीक है. यस, बोथ ऑफ देम आर STI. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. You were asked to assist with tubal.
Pregnancy, azithromycin 1 gram. Correct. Single dose. This is the recent CDC treatment. You were asked to assess the tubal 1 gram. 1 gram. You were asked to assess the tubal sterilization. ये picture देखो. What is the sterilization? What is it? Kit 1, 2 क्या? Color बताओ ना. You have to tell gray kit for cervical discharge, green kit for vaginal discharge. ठीक है? What is this procedure? It's not Pomeroy's. Pomeroy's हम हमेशा सबका करते हैं पीछे. सब पेशेंट्स का हम पोमरॉइज करते हैं. दिस इज नॉट पोमरॉइज. मैंने बताया था पोमरॉइज में वी मेक अ लूप. यहाँ पे टाई कर देते हैं एंड देन वी कट द एंड्स. व्हाट वी गेट इन द एंड इज दिस. ऐसे मिलता है पोमरॉइज में. ये पोमरॉइज नहीं है. पार्कलैंड. यू आर टेकिंग अ पीस आउट. पार्कलैंड. सो 3-4 मेथड्स हैं ऑफ ट्यूबेक्टमी. ठीक है. व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली डन मेथड? पोमरॉइज. व्हाट इज द सूचर? Plain catgut. Plain catgut is the suture with which we do the tubectomy. Yes, loop and string. You make a loop and then you cut it. This is Pomeroy's. When you are taking a part से याद रखो, I am just cutting 2 edges and taking out a part completely. That is Parkland. हाँ, एक piece निकाल लिया, that is Parkland. अगर if I have cut it and I have turned it into the uterus, I have created a wing of the uterus. मैंने एक wing create कर दिया, ear wing. The medial part is embedded in the uterus. Medial part is embedded in the uterus. So you have created a wing for the uterus, ear wing. Madlener ने क्या किया? Instead of cutting this loop, it has just crushed it. It has crushed it. That's Madlener. And Kroner fimbrectomy ने fimbria हटा दिया. Kroner is you have removed the fimbria. ठीक है? Okay? Okay? चलो. If the division of inner cell mass, yes, easy. If the division of inner cell mass takes place within 3 days of fertilization, it results in formation of which type of twin? Please tell me. 3 दिन के अंदर हुआ है तो क्या होगा? हाँ, गायनेकोलॉजी की बहुत क्वेश्चन आते हैं. Sakshi ma'am will be taking some of the sessions, guideline sessions also. But if there are few topics which are still confusing, it'll be really helpful if you can just put down those topics and we'll take quick. इतना लंबा सेशन नहीं लेंगे फिर. क्विक 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 20-15 मिनट का सेशन लेके वी हैव टू फिनिश इट. DCDA. परफेक्ट. परफेक्ट. देखो जब ट्विंस होते हैं ना, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, दैट आर क्रिएटेड फ्रॉम द सिंगल जाइगोट, दे डिवाइड. डाइजाइगोटिक तो 2 जाइगोट से बने, दे आर डाइजाइगोटिक. दे आर ऑलवेज डायएमनियोटिक, डाइकोरियोनिक. कोरियन इज लाइक अ हाउस और उस हाउस के अंदर एमनियन इज लाइक द रूम. सो दीज फीटसेस आर ऑलवेज डाइकोरियोनिक, डायएमनियोटिक. ठीक है. डाइजाइगोटिक. मोनोजाइगोटिक में द डिवीजन हैपेंस. आई हैव शोन यू अ फंडा आल्सो हाउ टू रिमेंबर. आप इन ट्विंस को जितना क्लोज रखते हो, जितने दिन, दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स एंड इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम. So remember 3, 3 to 8, 8 to 13. If you divide them within 3 days, आपने उनको 3 दिन में डिवाइड कर दिया, they were not very good friends. HPV अपडेट्स का मैम ने अभी एक सेशन लिया है इंस्टा पे भी. मैम विल टेक अ सेशन. If you have divided the zygotes within 3 days, they were not such a good friend. They are ready to live in a separate house and separate room. Diamniotic, dichorionic. ठीक है. अब सपोज you have divided them in 3 to 8 days. थोड़ा थोड़ा they have started becoming friends. Now their separation is difficult. So अब आप उनको डिवाइड कर रहे हो तो they said we will stay in different rooms but we will stay in the same house. डायमनियोटिक, मोनोकोरियोनिक. हम सेम घर में रहेंगे बट डिफरेंट रूम में रह लेंगे, कोई बात नहीं. डायमनियोटिक, मोनोकोरियोनिक.
अगर आप इफ यू आर सेपरेटिंग इट आफ्टर 8 days, now it is very difficult to separate them. They say we will stay in the same room and in the same house, like this. Same room, same house. And if you are separating them after 13 days, now they are joint. What you are giving is the Siamese twins now. Conjoined twins. जितना लेट सेपरेट करोगे उतना ही उनका सेपरेशन डिफिकल्ट है. तो 3 to 8, 8 to 13. बस रिमेंबर दिस. Now if the question is asked, which overall, which type of twin is most common? Who will tell me which type of twin is most common? कौन सा ट्विन सबसे कॉमन है? कौन बताएगा मुझे कौन सा ट्विन सबसे कॉमन है? Which variety of twin is most common? Oi, conjoined twin is most common. Which type of twin is most common? Who will tell me? Correct. क्योंकि सबसे ज्यादा ट्विन्स होते हैं डाइजेगोटिक, so the most common variety is this. Good. Next question. In monozygotic twins, now question is, in monozygotic twins, which variety is most common? In monozygotic twins, which variety is most common? अब क्वेश्चन चेंज हो गया. ओवरऑल नहीं पूछ रहे. इन मोनोजाइगोटिक ट्विन कौन सा वैरायटी सबसे कॉमन है? यानी कि इन मोनोजाइगोटिक ट्विन्स व्हेन इज द मोस्ट कॉमन टाइम जब डिवीजन होता है? दिस. इन मोनोजाइगोटिक ट्विन्स एमसीडीए इज मोस्ट कॉमन. सबसे ज्यादा डिवीजन 3 to 8 days के बीच में होता है. बट ओवरऑल द मोस्ट कॉमन वैरायटी इज डीएडीसी. एमसीएमए नहीं, एमसीडीए इज मोस्ट कॉमन. ठीक है? नॉट एमसीएमए, एमसीडीए. 3 to 8 days is the most common separation. So monochorionic diamniotic is the most common variety. Not monochorionic monoamniotic. Nope. ठीक है? So overall most common DCDA. In monozygotic the most common is MCDA. Please remember previous year question. ठीक है? चले आगे. Let's move ahead. A 35-year-old woman, gravida 3, para 2, at 12 weeks of gestation, presents for prenatal visit. Her screening test shows beta HCG is high and pregnancy-associated plasma protein is low. Nuchal translucency भी high है. So what? पहली बात, कौन सी पैथोलॉजी आपके माइंड में आती है? What pathology comes to your mind? I've recently got one baby in my house, and that is the one that is making us sure. I just found it on the road, and since then it's living with us. Yes, tell me. ये बेटा अब खुद बताओ, अगर विद इन 3 days डिवीजन होगा तो कहाँ होगा? 3 days के लिए तो वो ट्यूब में था ना, तो ये डिवीजन ट्यूब में होगा. 3 to 8 days में तो यूट्रस में आ गया, तो ये डिवीजन यूट्रस में होगा. है ना? राइट? है ना? क्यूट है ना? इट्स आई नो इट्स वेरी क्यूट. दिखा तो आई जस्ट गॉट इट. अभी घूमता रहता है आसपास. सो दिस व्हाट आर यू थिंकिंग? कौन सी पैथोलॉजी में एचसीजी हाई होता है बट पैप कम होता है? डाउन सिंड्रोम में. ट्राइसोमी 13 और 18 में एचसीजी हाई होता है, एचसीजी भी लो होता है, पैप भी लो होता है. एचसीजी और पैप दोनों लो होता है ट्राइसोमी 13 18 में. हम क्या सोच रहे हैं यहाँ पे? डाउन सिंड्रोम. बट क्वेश्चन ये नहीं है हमारा. हमारा क्वेश्चन है विच डायग्नोस्टिक टेस्ट विल यू डू? अब मुझे बताओ विच डायग्नोस्टिक टेस्ट विल यू डू? यस, आई विल गेट अ क्रोमोसोमल टिश्यू फ्रॉम द प्लासेंटा. व्हाट एम आई डूइंग हियर? कोरियोनिक विलस सैंपलिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे. आई एम डूइंग कोरियोनिक विलस. ऐसे घूमता रहता है. आई एम डूइंग कोरियोनिक विलस सैंपलिंग. मैं ट्रिप्लॉइडी एमनियोटिक फ्लूइड क्यों नहीं चेक कर रही हूँ? ट्रिप्लॉइडी एमनियोटिक फ्लूइड नहीं चेक करने दी. ट्रिप्लॉइडी मतलब क्या होता है? एवरी क्रोमोसोम इज 3 pair. Every chromosome is 3 pair. No, I want to check the trisomy. Trisomy मतलब क्रोमोसोम 21 पे 3 आ गए. सारे क्रोमोसोम्स 3 नहीं है. ट्रिप्लॉइडी मीन्स instead of 46 we have triplet. I am checking for trisomy.
फ्री फीटल डीएनए याद रखो, फ्री फीटल डीएनए एक स्क्रीनिंग टेस्ट है. फ्री fetal DNA is a screening test with 99% sensitivity. It's not a diagnostic test. Diagnostic test हमारे पास दो ही हैं. If this image come, it is amniocentesis done at 15 to 20 weeks. If this image comes where the catheter is going into the placenta, that is chorionic villus sampling, done at 11 to 14 weeks. Remember, chorionic villus sampling confuse नहीं होना है, वो सिर्फ vaginally नहीं करते हैं. अगर आपको ये इमेज देखो, see this image, because many questions people in NEET PG did it. एब्डोमिनल इमेज आई है तो सबने एमनियोसेंटेसिस मार्क कर दिया. नहीं. इफ एब्डोमिनल इमेज इज शोन एंड द नीडल इज गोइंग इन द प्लेसेंटा, कैन यू सी इट इज गोइंग इन प्लेसेंटा? इट इज कोरियोनिक विलस सैंपलिंग. कोरियोनिक विलस सैंपलिंग वजाइनली और एब्डोमिनली दोनों तरह से करते हैं. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि एब्डोमिनल पिक्चर आ गई तो एमनियोसेंटेसिस मार्क कर दिया. वेयर इज द नीडल गोइंग, सी दैट. ठीक है. याद रखना है क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी में, ट्राइसोमी 21 में क्या होता है? HCG हाई है और प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन लो है. बाकी ट्राइसोमीज में HCG भी लो है और पैप भी हाई है, लो है. ठीक है. ये कौन से टेस्ट है? दीज टू आर द डुअल मार्कर. नाउ हु विल टेल मी द क्वाड्रुपल मार्कर? क्वाड्रुपल मार्कर में क्या करते हैं हम? क्या चार चीजें करते हैं हम क्वाड्रुपल मार्कर में? वेरी गुड, very good. We do HCG, which is high. We do alpha fetoprotein, which is normal or low. We do estriol, my pen, again normal or low. And we do inhibin. Which, who will tell me which inhibin? कौन सा inhibin करते हैं? Inhibin भी high होता है. HCG is high. Remember, high is high. High is high. तो HCG is high, inhibin is high. Inhibin A, very good. Inhibin A, good. Hmm? High is high. ठीक है. चलो. Next question on anemia. What is the correct formula to calculate the iron dose of parenteral therapy in a pregnant woman? पहली बात तो फॉर्मूले का नाम क्या है? गैंजोनी फॉर्मूला. ठीक है. ओके. चलो बताओ क्या फॉर्मूला है. ज्यादा टाइम नहीं है ना, जल्दी जल्दी करते हैं. हमारे पास क्वेश्चंस ज्यादा नहीं. लेट मी जस्ट चेक. गैंजोनी फॉर्मूला इज सिंपल. यू टेक द पेशेंट्स वेट. रिमेंबर, ये जो वेट है ना, ये पेशेंट का प्री प्रेगनेंसी वेट होता है हमेशा. इट इज नेवर द करंट वेट. याद रखना, ये पेशेंट का प्री प्रेगनेंसी वेट. अभी वो चाहे 100 kgs की हो, तो प्री प्रेगनेंसी कितनी थी उससे आयरन थेरेपी निकलती है. प्री प्रेगनेंसी वेट इनटू अ कांस्टेंट विच इज 2.4 इनटू द हीमोग्लोबिन डेफिसिट. हमें कितना चाहिए और कितना है. ठीक है. हीमोग्लोबिन डेफिसिट इनटू स्टोर्स. स्टोर्स 500 ग्राम्स, milligrams, sorry, 500 milligrams. So this is the formula. This one. ठीक है. गैंजोनी फॉर्मूला बी करेक्ट. आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. अनीमिया मुक्त भारत क्या कहता है? हाउ मच आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट हैज टू बी गिवन फॉर प्रोफाइलेक्सिस? प्रोफाइलेक्सिस शुरू करते हैं 14 वीक से. IFA प्रोफाइलेक्सिस में आप आयरन देते हो 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन देते हो. फोलिक एसिड आप देते हो 500 mcg. और ये दोनों टैबलेट्स कितने दिन देते हो आप? 180 days. 180 days in the pregnancy, and once she deliver, I give 180 days more in the postpartum. ये है अनीमिया मुक्त भारत प्रोफाइलेक्सिस. अब अनीमिया मुक्त भारत ने ये डोज याद रखना है. ये फोलिक एसिड 400 to 500 नहीं है, ये इतना ही है. ठीक है. अब ट्रीटमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू अनीमिया मुक्त भारत? व्हाट इज द ट्रीटमेंट जो हम अभी पढ़ रहे थे? If it is a mild anemia, in mild anemia, you can give 2 iron folic acid tablet. Can you give it in first trimester? Yes. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर अनीमिया है तो कब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. ठीक है.
2 tablets iron folic acid. But if the patient is coming late, you don't have time, then you give IV iron. Moderate anemia में exactly same treatment. So this is again according to Anemia Muक्त Bharat program. सिवियर अनीमिया में, सिवियर अनीमिया में आपको आईवी आयरन देना है एंड यू सेंड दी हायर इन्वेस्टिगेशंस. इसमें आप हायर इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराते हैं, लाइक द आयरन प्रोफाइल. हियर यू डू इट इन सिवियर अनीमिया एंड द ट्रीटमेंट इज आईवी आयरन. बट इफ सिवियर अनीमिया पेशेंट इज कमिंग लेट, एक तो सिवियर अनीमिया है, लेट प्रेगनेंसी में शी कैन गो इनटू कार्डियक फेलियर, यू गिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सो सिवियर अनीमिया मतलब लेस देन 7. If she is coming late, I will give blood transfusion. But very severe anemia in any trimester, blood transfusion. Very high risk of cardiac failure. ठीक है? Unlikely. Once you get selected in NORCET and such exams, beta, they are very liberal in your documentations. अगर आपने थोड़ा गलत डाल दिया, you have to submit a letter and a request, written request. They will change it. एक बार आप सिलेक्ट होते हो तो उसके बाद प्रोसेस को कैंसिल करने में दे नीड अ टफ इशू. वो छोटी सी चीज पे कैंसिल नहीं करते. ठीक है, अगर थोड़ा गलत भी डाला दे विल नॉट कैंसिल इट. ठीक है. इफ मदर इज अनीमिक, स्टार्ट द ट्रीटमेंट. प्रोफाइलेक्सिस नहीं, फिर स्टार्ट द ट्रीटमेंट. बट याद रखो, वेरी सिवियर अनीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एनी जेस्टेशन. सिवियर अनीमिया में पहले फेज में, पहले 2 ट्राइमेस्टर में आईवी आयरन देते हैं, लेट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं. माइल्ड मॉडरेट में 2 टैबलेट्स ऑफ आयरन फोलिक एसिड देते हैं. IV iron that is given is according to our guidelines. Now we give only IV iron. Guidelines में IM iron हटा दिया है. बेटा तो they have removed IM iron and there are only 2 molecules now. Sucrose, ferrous iron sucrose and iron carboxymaltose. According to our guidelines, now only these 2 have to be given. Why I'm telling you, question comes. Patient is severely anemic, what will be the treatment? IM iron maltose, IV iron sucrose. So remember, IV iron ही देते हैं और these 2 compounds only. ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. दोनों, both of them are very good. In fact, carboxymaltose is more efficient. You will not be asked such question. ऐसे क्वेश्चंस में टाइम मत वेस्ट करो, बिकॉज दे विल नॉट आस्क सुक्रोस और कार्बोक्सीमाल्टोज में से कौन सा दोगे, बिकॉज गाइडलाइंस से बोथ ऑफ देम. दे विल नॉट गिव यू दिस. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं फटाफट, है ना. टेकन लॉट ऑफ टाइम, नो. मैच द फॉलोइंग पैरामीटर्स इन प्रेगनेंसी विद देयर टिपिकल चेंज. ठीक है. आरबीसी मास बढ़ता है, एल्ब्यूमिन लेवल्स कम होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, फिब्रिनोजन लेवल्स तो डबल हो जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम इन लंग्स कम हो जाती है. व्हाट इज द आंसर? 2 कम है, ये 3 भी कम है, ये वाला डी. ठीक है. देखो फटाफट से प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस हैं ये पढ़ लेते हैं. प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है, नाउ यू हैव टू गिव मोर ब्लड टू द बेबी. आपको बेबी को बहुत सारा ब्लड देना है. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन नाउ, अगर आपको बेबी को बहुत सारा ब्लड देना है, व्हाट विल हैपन टू द ब्लड वॉल्यूम? माय ब्लड वॉल्यूम विल राइज, टोटल ब्लड वॉल्यूम विल राइज, माय आरबीसी मास विल राइज, प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत ज्यादा राइज हो जाता है. द प्लाज्मा वॉल्यूम राइज अ लॉट, वो आरबीसी मास से भी ज्यादा राइज होता है. इसकी वजह से हीमोडाइल्यूशन हैपेंस. बिकॉज ऑफ सच हाई प्लाज्मा वॉल्यूम, हीमोग्लोबिन फॉल, सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन फॉल, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन, प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन फॉल, प्लेटलेट काउंट फॉल. बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन एवरीथिंग इज हैपनिंग, ये सब फॉल हो जा रहे हैं. ठीक है. बट रिमेंबर फ्यू थिंग्स, प्लेसेंटा बढ़ रहा है, यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, तो टोटल प्रोटीन इज इंक्रीजिंग. टोटल प्रोटीन अगर आप काउंट करोगे वो बढ़ रहा है, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन फॉल हो रहा है. प्लस प्रेगनेंसी इज अ हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, सो कोएगुलेशन फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, फिब्रिनोजन बढ़ रहा है, एंटी कोएगुलेशन फैक्टर्स कम हो रहे हैं. All the coagulation factors rise except factor 11 and 13. सिर्फ फैक्टर 11 और 13 है
जो रिड्यूस होते हैं, बाकी सारे राइज होते हैं। फिब्रिनोजन बहुत बढ़ जाता है। फिब्रिनोजन की वजह से ईएसआर प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। ठीक है। यस, सिर्फ 11-13 रिड्यूस होते हैं। इतना सारा प्लाज्मा वॉल्यूम हो गया है, इसीलिए इतना सारा ब्लड है बॉडी में, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। इसीलिए रीनल ब्लड फ्लो, किडनी की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। ठीक है। सो चीजों को कोरिलेट करेंगे तो याद रहेगा। WBC राइज, इट इज अ कंडीशन वेयर द टी सेल्स राइज, सो WBC बढ़ जाती है। ठीक है। अब हम क्यों याद कर रहे हैं कि फिब्रिनोजन कितना बढ़ता है, हम क्यों इतनी सारी इंफॉर्मेशन याद रख रहे हैं? अच्छी बात है याद रख रहे हैं, बट हमारे पास ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हैं। फिब्रिनोजन डबल हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, बट हम क्यों सब चीजों का लेवल याद रखें? मतलब आई थिंक कोई बात नहीं, याद रख रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट टायर्ड नहीं होना, इतनी चीजें याद रखिए, डोंट गेट टायर्ड, डोंट गेट एग्जॉस्टेड, है ना? ठीक है। यस, कार्डियक आउटपुट राइज, रीनल ब्लड फ्लो राइज। व्हाट अबाउट लंग्स? लंग्स में क्या हो रहा है? आई टोल्ड यू, यूट्रस पूरे डायफ्राम को प्रेस कर रहा है, तो क्या होगा? डायफ्राम प्रेस हो रहा है तो आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम गिर जाएगी ना, बट टोटल लंग कैपेसिटी नहीं गिरेगी, बिकॉज चेस्ट ऐसे एक्सपैंड हो जा रहा है हॉरिजॉन्टली, तो टोटल लंग कैपेसिटी वही रहेगी, रेजिडुअल वॉल्यूम कम हो जाएगी। ठीक है। पेशेंट स्टार्ट्स ब्रीदिंग डीपली, पेशेंट डीप ब्रीथ लेता है, तो रेस्पिरेटरी रेट तो सेम रहता है, बट टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इट इज, पेशेंट इज टेकिंग डीप ब्रीदिंग, सो मिनट वेंटिलेशन बढ़ जाएगा, हर मिनट में ब्रीदिंग बढ़ गई। ठीक है। मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज, रेस्पिरेटरी रेट डजेंट इंक्रीज, रेजिडुअल वॉल्यूम फॉल। ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा हमें। ठीक है। नो, टाइडल वॉल्यूम राइज। यस, डेप्थ, वो गहरा सा। टाइडल वॉल्यूम क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर टेकन इन 1 मिनट, सो रेस्पिरेटरी रेट इनटू द वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। क्योंकि वो ज्यादा एयर ले रही है इसीलिए टाइडल वॉल्यूम राइज, बट नॉट द रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है। मिनट वेंटिलेशन राइज राइज, करेक्ट, टाइडल वॉल्यूम राइज। हो गया। चले आगे, सो ऐसे याद रखेंगे हम। ठीक है। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्यूवर वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग दिस वजाइनल डिलीवरी? ये क्या कर रहे हैं हम? बेबी की बॉडी बाहर आ गई है, हेड रह गया कि व्हाट आर वी डूइंग? कंफ्यूज, कंफ्यूज, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। भैया देखो, ये लंग्स हैं तुम्हारे, है ना? अरे यार, आई एम नॉट, एक सेकेंड, दीज आर द लंग्स, ये लंग्स थे। अब ये जो डायफ्राम है, ये यूट्रस की वजह से कंप्रेस हो गया है। कंप्रेस होगा तो क्या होगा? जो इसमें रेजिडुअल स्पेस थी, वो रेजिडुअल स्पेस जिसमें एयर हमेशा रहती है, दैट रेजिडुअल वॉल्यूम विल फॉल ना। नीचे से कंप्रेस कर रहा है तो वो रेजिडुअल वॉल्यूम कम हो गई, बट चेस्ट ऐसे एक्सपैंड हो गई है, चेस्ट हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड, तो टोटल लंग कैपेसिटी नॉर्मल है, वाइटल कैपेसिटी भी नॉर्मल है। ठीक है। बट आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम और आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जो आप एक्सपिरेट करते हो फोर्सफुली, वो दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। हम टाइडल वॉल्यूम की बात करें, द वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन 1 मिनट, इट राइज। वाई इट राइज? क्या रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है? नहीं, मिनट वेंटिलेशन बढ़ रहा है, द पर्सन इज टेकिंग डीप ब्रेथ्स। ठीक है। ठीक है। ओके। व्हाट इज दिस मैन्यूवर? प्रेग मैन्यूवर। क्यों कर रहे हैं हम? डिलीवरी ऑफ आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच। ठीक है। देखो, ब्रीच डिलीवरी को हम क्या बोलते हैं? असिस्टेड ब्रीच। ब्रीच अकेले डिलीवर नहीं हो सकता, वी गिव असिस्टेंस एट वेरियस लेवल्स, इसलिए उसको असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी कहते हैं। जब ब्रीच खुद आ रहा होता है, अगर आ गया तो गुड। सपोज सबसे पहले क्या आएंगे? बटक्स आएंगे, उसके बाद आती है लेग्स। अगर लेग्स फ्लेक्स्ड है, दे विल कम आउट। इफ द लेग्स आर एक्सटेंडेड, लेग्स आर एक्सटेंडेड मतलब इट्स अ फ्रैंक ब्रीच। अगर लेग्स एक्सटेंडेड है, इट विल नॉट कम। यहाँ पे हमें पहला असिस्टेंस देना पड़ता है, असिस्टेंस गिवन एट द लेवल ऑफ लेग्स। व्हाट टू मैन्यूवर्स वी यूज, बस पिक्चर देखो, याद रखना है। ठीक है। व्हाट इज दिस मैन्यूवर बीइंग डन? ग्रॉइन ट्रैक्शन। क्वेश्चन आता है, ग्रॉइन ट्रैक्शन इज डन फॉर एक्सटेंडेड लेग्स इन ब्रीच। अब ग्रॉइन ट्रैक्शन के अलावा देर इज वन मोर मैन्यूवर, यू गो एंड यू फाइंड द पॉप्लिटियल फॉसा, यू पिन द पॉप्लिटियल फॉसा। देखो, ये लेग है, जैसे आपने इसको पिन किया, इट विल फ्लेक्स,
टेक द लेग आउट। इसे हमने बोला पिनार्ड्स मैनूवर। सो ग्रॉइन ट्रैक्शन की इमेज याद रखो फॉर डिलीवरिंग द एक्सटेंडेड लेग्स, एंड पिनार्ड्स मैनूवर याद रखो फॉर डिलीवरिंग द एक्सटेंडेड लेग्स। सो दीज आर फॉर एक्सटेंडेड लेग्स। चलो लेग्स बाहर आ गए, अब क्या बाहर आएगा? आर्म्स। लेग्स हैव कम आउट, आर्म्स विल कम आउट। अगर आर्म्स फ्लेक्स्ड है दे विल कम आउट। अगेन आर्म्स आर न्यूकल आर्म्स, एक्सटेंडेड ऐसे आर्म्स हैं। तो अब क्या होगा? जस्ट अ सेकेंड। Then arms will not come out. Again, two maneuvers, assistance two. Now we need assistance again to deliver the extended arms. What is this? Sweeping of posterior shoulder. Anterior shoulder नहीं आ रहा है, sweeping the posterior shoulder. Sweeping the posterior arm. दूसरा मैनेवर बिल्कुल सही, लॉव सेट। क्या करना है? बेबी को पकड़ा फ्रॉम द पेल्विस, उसको पेल्विस पे पकड़ते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है? सो लुक हियर, anterior arm was extended, so I hold the baby, I rotate it so that the posterior arm comes up. This is the love-set maneuver. So love-set is done for the arms, pinards is done for the legs, and both of them are done in the breech delivery. चलो अब पैर आ गए, हाथ आ गया, what is there? Head. For delivering head I have many maneuvers. सबसे commonly done MSV, Marusi Simil Wheat maneuver. Can you see the whole body is out but the head is not coming out? So when you are using your two hands, इमेज में देखना, एक हैंड बच्चे के नीचे है, एक हैंड बच्चे के ऊपर है, यू आर होल्डिंग द बेबी बिटवीन योर टू हैंड्स, दैट इज एमएसवी मैनोवर। ठीक है? एमएसवी, मैरुसी सेमिलवीड मैनोवर। अनदर मेथड, लेट द बेबी हैंग इन इट्स वेट, यूजिंग योर वन हैंड बेबी को ऐसे पूरा मदर के एब्डोमेन पे रख देते हैं, लाइक दिस। दिस इज बर्न मार्शल। तो ये सब किस चीज के प्रोसीजर्स है? दीज आर द प्रोसीजर फॉर आफ्टर कमिंग हेड इन ब्रीच। You can use forceps, but special forceps is used with this curve, Piper forceps. Why you need curve? क्योंकि आपकी पूरी बॉडी इस पे हैंग करेगी। So Piper forceps is for after coming head in breech. तो MSV हुआ, बर्न मार्शल हुआ, पाइपर फॉर्सेप हुआ। वी आर डिस्कसिंग हेड डिलीवरी इन ब्रीच। रिमेंबर बैक शुड ऑलवेज बी एंटीरियर, हमेशा ब्रीच डिलीवरी में बैक एंटीरियर होना चाहिए। सपोज बैक टर्न्स पोस्टीरियर, प्रेग मैनोवर। Prague maneuver is done when your back has turned posteriorly, which should not happen. But अगर ये हो गया है तो आप Prague maneuver करते हो। So आपने legs की डिलीवरी के लिए क्या यूज किया? I used groin traction and pinards. For arms, I used sweeping of the posterior shoulder or love set. For head, I used either MSV or Burn Marshall or Pipers or Prague. Correct. ठीक है, ये ब्रीच की इमेजेस है। सिफिलिस में सी पार्वोवायरस इज टिपिकली हाइड्रोपिक बच्चा, इतना अनीमिक बच्चा होता है पार्वोवायरस का, दैट पूरा फ्लूइड कलेक्ट होता है, साइटिस होता है, पार्वो पूरा बेबी कलेक्ट्स फ्लूइड एंड बेबी डाइज ऑफ हार्ट फेलियर। सिफिलिस के बच्चे को राइनाइटिस होता है, उसको पैलेट में परफ्यूजन मिल जाएगा, कंजंक्टिवाइटिस मिलेगा, उसको स्किन में इरोजन्स मिलेंगे। सो दीज दैट विल बी सिफिलिस, पीलिंग ऑफ द स्किन्स मिलेगी। ठीक है ना? ओके okay. चलो खत्म। 30-year-old लेडी प्रेजेंट विद 5 weeks एमेनोरिया, सिर्फ 5 weeks, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, शी इज अ नोन केस ऑफ एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, एप्ला है उसको। ठीक है, एक सेकेंड एवरीवन, या उसको एप्ला है फ्रॉम द प्रीवियस रिपोर्ट, एंड उसको एप्ला के साथ साथ शी हैड कॉर्टिकल वेन थ्रोम्बोसिस इन लास्ट प्रेगनेंसी। तो दो चीजें हैं, उसको प्रीवियस वीटी हुआ है, वीटी मतलब वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हुआ है, और उसको एक थ्रोम्बोजेनेटिक डिसऑर्डर भी है, दोनों चीजें हैं। तो अगर दो हाई रिस्क फैक्टर है, देन व्हाट विल यू डू? यू गिव द थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस इन होल प्रेगनेंसी एंड 6 weeks बोथ। अब पूरी प्रेगनेंसी में और 6 weeks तक पूरा हिपरिन देते हो। तो अगर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की हिस्ट्री है
एंड पेशेंट हैज सम थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर, एप्ला नहीं देंगे, क्वेश्चन आपको एंटी थ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी देगा, प्रोटीन सी डेफिशिएंसी देगा, थ्रोम्बोजेनिक डिसऑर्डर भी है और आपको हिस्ट्री है वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की, आई विल गिव हेपरिन फ्रॉम प्रेगनेंसी टिल 6 वीक्स। ठीक है। अगर आप इफ यू हैव जस्ट एप्ला या फिर एंटी थ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी है, कोई थ्रोम्बोजेनिक डिसऑर्डर है बट नो प्रीवियस हिस्ट्री, कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, आई विल गिव यू एंटीनेटल हेपरिन। मुझे आपको पोस्ट नेटल में देने की जरूरत नहीं है, आई विल गिव यू एंटीनेटल हेपरिन। ठीक है। So here, when two big risk factors are present, we will give heparin in the pregnancy and 6 weeks postpartum. What is the dose? The dose is 40 milligram BD, subcutaneous. ठीक है, subcutaneous, sorry. So heparin 40 milligram BD is the therapeutic dose. प्रोफाइलेक्टिक डोज होती है 40 मिलीग्राम ओडी, वो प्रोफाइलेक्टिक डोज होती है। बीडी डोज दी जाएगी, इसे कहते हैं हम हायर डोज देते हैं पूरी प्रेगनेंसी में एंड 6 वीक्स पोस्टमार्टम में। फिनिश। So what are you asking? Any other question? You want the difference between physiological retraction ring and Bandel's ring. Physiological retraction ring and Bandel's ring. So physiological retraction ring and Bandel's ring. Physiological retraction ring is not felt vaginally. Bandel's ring is felt vaginally. It is not felt vaginally. It is fixed. It doesn't change its position. It moves upwards. ये धीरे धीरे upwards move करती है. There are no signs of dehydration in mother and the fetal heart rate is normal. Here the mother develops dehydration and the fetal heart rate is abnormal. ठीक है. Presentation and lie सारी ठीक है. देन यू वांट एडिनोमाइसिस एंडोमेट्रियोसिस, अरे बेटा एडिनोमाइसिस का एक फूला हुआ यूट्रस है, एनलार्ज यूट्रस है। ठीक है। क्यों एनलार्ज है भाई, इसकी मायोमेट्रियम में एंडोमेट्रियोटिक टिश्यूज आ गए हैं तो वो स्वेल हो गया है। इट्स अ बिग यूट्रस स्वोलन एंड वेरी टेंडर, सिम्टम वही है, इसको भी बहुत डिस्मेनोरिया है, बहुत डिस्पेरियूनिया है, बट ऑन एग्जामिनेशन इट्स एन एनलार्ज्ड यूट्रस, सॉफ्ट एंड टेंडर। एंडोमेट्रियोटिक का यूट्रस कोई एनलार्ज थोड़ी है, इट इज नॉट एनलार्ज्ड, बाहर टिश्यू है, एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू इज आउटसाइड रिजल्टिंग इन लॉट ऑफ अधेशंस, पूरे अधेशंस हो गए। सेम डिसमेनोरिया प्लस डिस्पेरियोनिया इसको भी है, बट इसको इनफर्टिलिटी भी है क्योंकि इतने अधेशंस हैं इसीलिए। व्हेन यू एग्जामिन द यूट्रस नॉर्मल साइज है बट फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है? आसपास के अधेशंस की वजह से। ठीक है। PDF, I'll ask the team to share the PDF right now only. I'll share the PDF with the team right now and I'll remind them tomorrow also to share the PDF. Okay? Yes, endometriosis में यूट्रस बिल्कुल लार्ज नहीं होता, एवरीथिंग इज हैपनिंग आउटसाइड यूट्रस। तो यूट्रस में कुछ भी नहीं होता, यूट्रस स्मॉल है बट एकदम फिक्स्ड है। करेक्ट, बिल्कुल सही, वेरी गुड। हिपैरिन प्रोफाइलेक्सिस डोज होती है बेटा 40 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस ओडी। ठीक है। और कुछ? चलो चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड बस जम के तैयारी करो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। एक सीट चाहिए, किसी भी तरह से एक सीट निकालनी है बस। ठीक है। किसी भी तरह बस रेस में घुसना है। वर्क वेरी हार्ड, थोड़े से दिन रह गए हैं, बस इस बार कमी मत छोड़ना। ठीक है ना? चलो, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय।